children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, living organisms. Introduction. Our earth contains a variety of living and non-living things. For example, a bird flying in the sky is a living thing, but a cloud or kite flying in the sky are non-living things. All of them show movement, yet one is living and the other two are non-living. A chair and table are non-living. They cannot move around. Plants also remain at one place but are living. Therefore, we need to understand the characteristics of living and non-living things. Though we explore a lot of differences between living and non-living things, there are some similarities. All living and non-living things are formed of matter and both of them consist of structural units. देखिए इस अर्थ में बहुत सारे आपके लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, राइट? कुछ आपके लिविंग थिंग एक जगह पे रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स की बात करें, बाकी आपके जो लिविंग थिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो लिविंग थिंग्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं. Cells are known as the structural units of living things. These cells are formed of atoms. Yet the smallest unit of the matter from which a non-living thing is made up of is also an atom. All living and non-living things contain weight and also both of them occupy space. Unless we learn about the different features and distinctive characteristics of living things, we may not differentiate between living and non-living things. Let us study more about the characteristics, features of living things. तो देखिए सबसे पहले जो सेल्स हैं आपके, इनको कहा जाता है लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट्स. ये जो सेल्स हैं ये आपकी एटम से बने होते हैं, राइट? अब देखिए जो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग में दे कंटेन वेट, दे बोथ ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस, यानी दोनों ही मैटर है. तो देखिए सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स, बी अ प्लांट और एनिमल, show some common characteristic which make them different from non-living things. Did you know viruses are things that have characteristics, features of both living and non-living? आपके जो viruses हैं वो living and non-living दोनों के ही characteristics को show करता है. Respiration. All living organisms breathe. They inhale oxygen and exhale carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is called breathing. We are already aware that during photosynthesis, plants release oxygen and carbon dioxide is a byproduct of respiration. Let us execute an activity to prove that carbon dioxide is released during respiration. अच्छा देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. जैसे कि आपको पता है प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड देन दे रिलीज ऑक्सीजन. अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 7.1. टेक लाइम वाटर इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. फिक्स रबर स्टॉपर्स विद 2 holes in the test tube. Insert the glass tube into these holes. Now slowly breathe out into lime water test tube through glass tube. What do you see? The lime water turns milky, showing the presence of carbon dioxide in the exhaled air. आपको lime water लेना है clean test tube में. इसके ऊपर आपको रबर स्टॉपर को फिक्स करना है 2 होल्स के साथ, जैसे कि आपको देखिए इसमें शो किया गया है. अब आपको एक ग्लास ट्यूब को यहाँ से इंसर्ट करना है इन होल से. अब आपको क्या करना है? ब्रीद आउट करना है लाइम वाटर में ग्लास ट्यूब के थ्रू. तो आप देखेंगे जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, मिल्की कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन. अब लिविंग थिंग्स जो है उनको रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है. रेस्पिरेशन बर्न्स द फूड इनसाइड आवर बॉडी. ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द सेल टू generate energy from the digested food. This process is known as oxidation of food. We use this energy to perform various activities. तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस के दौरान, और उससे हम वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं. Do plants also respire? In fact, they do not have any organs for respiration. They respire through very small pores in their leaves called stomata. The exchange of gases takes place through stomata. All land animals breathe in oxygen from the air. But what about aquatic animals? How do they breathe? Animals like fish breathe in oxygen dissolved in water through their gills. अब देखिए क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, लेकिन उनके तो कोई ऑर्गन्स ही नहीं होते, तो वो रिस्पायर करते हैं. उनके जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा. तो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं,
बट वॉट अबाउट एक्वाटिक एनिमल्स, वो कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलती है? एक्चुअली पानी में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन. अब जैसे कि फिश है, वो इस ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं थ्रू गिल्स. न्यूट्रिशन. All living beings need food. Food provides us energy to perform various functions. It also helps in body growth as well as its maintenance and repair. Have you ever thought what happens if you do not get food for days? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है. फूड उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, है ना. इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी के जो वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड. अच्छा, आपने सोचा है कि अगर खाना ना मिले कई दिनों तक तो क्या होगा? डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. मैनी एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एज देयर फूड. तो देखिए डिफरेंट एनिमल्स जो है डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं. प्लांट्स जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं फूड फॉर एनिमल्स. एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड पे. कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. How do plants get their food? Green plants prepare their own food. They absorb water and minerals from the soil through their roots. The stem carries the water and nutrients to different parts of the plants. Plants अपना खाना खुद से बनाते हैं. ये water and minerals को absorb करते हैं soil से through their roots. इसके बाद जो stem है वो water and nutrients को carry करती है plant के different part तक. Plants prepare their food with the help of sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. This process of food manufacture is called photosynthesis. Plants are called autotrophs because they make their own food. अच्छा देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में आपको पता ही है. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाते हैं इस प्रोसेस में. एंड प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स. व्हाई? बिकॉज ये अपना खाना खुद से बनाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हु डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे. ग्रोथ. ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन साइज. अ बेबी ग्रोज अप टू बी अ यंग मैन और वुमन. सिमिलरली स्मॉल प्लांट ऑल्सो ग्रोज इन टू बिगर प्लांट एंड फाइनली बिकम्स अ ट्री. अब देखिए ग्रोथ जितने भी लिविंग थिंग है वो ग्रो करते हैं. बेबी जो है वो यंग मैन में कन्वर्ट हो जाता है या यंग वुमन में. इसी तरह से जो स्मॉल प्लांट होता है वो बड़े प्लांट में हो जाता है और फाइनली एक बिग ट्री बनता है. There are differences in the growth of animals and plants. Animals usually stop growing when they reach a certain age. For example, humans stop growing at about the age of 18. A plant keep on growing throughout its life. A non-living thing like a stone would never increase in size. In a unicellular organism like amoeba, growth would result in increase in size of its single cell. अब देखिए ग्रोथ एनिमल एंड प्लांट की डिफर करती है. एनिमल जो है एक सर्टेन एज के बाद ग्रो करना स्टॉप कर जाते हैं. एंड जैसे ह्यूमंस की बात करें तो वो लगभग आपके 18 की एज के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं. बट प्लांट थ्रू आउट अपनी लाइफ ग्रो करते रहते हैं. नॉन लिविंग थिंग की बात करें जैसे स्टोन, क्या वो अपने साइज में कभी ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना. अगर आपका कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं जैसे कि अमीबा, वो कैसे ग्रो करेगा? वो आपका ग्रो करेगा उसके जो सिंगल सेल है उसमें जब ग्रोथ होगी, उसके साइज में जो वो बढ़ेगा. बट इन एन एलिफेंट द ग्रोथ टेक प्लेस कंसिडरेबली. Movement. Living beings can move from one place to another. Different animals move differently using different parts of their body. You must have seen that birds fly, fish swim, snakes crawl, rabbits hop, frogs jump. Birds use their wings to fly, fish swim with the help of fins. Animals such as cats, dogs and deer have limbs to walk with. The movement of animals from one place to another is known as locomotion. अब देखिए लिविंग थिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, राइट. आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे क्या करते हैं? मूव करते हैं. तो जो एनिमल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज लोकोमोशन. Unlike animals, plants do not move about. This is because the plants synthesize their own food by photosynthesis and need not move around in search of food like animals. However, plants also show movement, but they show movement in their parts. अब देखिए प्लांट्स मूव क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें खाने की तलाश में जाना ही नहीं होता, वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते. बट दे शो सम मूवमेंट. Examples: if we touch a touch me not plant, we can see it folds and unfolds its leaves. अगर आप touch me not की plant को touch करेंगे तो अपनी leaves को वो fold कर लेता है, right? If we keep a sunflower plant with flowers out in the sun, we see that the flowers change their position to the face the sun.
अब देखिए सनफ्लावर प्लांट को, जिसमें फ्लावर आया हुआ है, अगर आप उसको रखते हैं तो अपनी पोजीशन वो सन की तरफ कर लेता है, जिस तरफ ये सन होगा वो उस तरफ फेस कर लेगा. Movement also take place internally in some animals, such as sponge. It happens by circulating water through their bodies. कुछ एनिमल्स में इंटरनली भी ना मूवमेंट होता है, जैसे कि स्पॉन्ज की बात करें. इसमें क्या होता है, वाटर सर्कुलेट होता है उनकी बॉडीज में. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस व्हिच आर सिमिलर टू द पेरेंट एनिमल और प्लांट. Some living organisms give birth to their young ones, such as horse, dog, cat, etc. Others lay eggs and their babies are hatched out of them. Plants also reproduce by different methods. Some plants reproduce through seeds, while some plants reproduce through their stem cuttings. अब देखिए रिप्रोडक्शन आपका प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बीइंग अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हीं की तरह होते हैं. तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं बट डिफरेंट मेथड से. कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम कटिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें रोज, आपने देखा होगा स्टेम कटिंग से आपका होता है. डिड यू नो अ ब्रायोफिलम प्लांट रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीव्स. स्मॉल बर्ड्स विद रूट्स कम आउट फ्रॉम इट्स लीव्स व्हिच कैन देन बी प्लांटेड इन द सॉइल. ब्रायोफिलम जो प्लांट होता है वो लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. Excretion. A lot of waste products are produced in our body. If these products are not thrown out of our body, they will make us ill and will harm us. The waste part of the food and the excess of water gets removed from the body in the form of stool, urine and sweat. The process of throwing out waste from our body is known as excretion. अब देखिए हमारी बॉडी में ना बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसे हम बॉडी से बाहर निकालें. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. राइट. अब जैसे कि देखिए स्टूल, यूरिन एंड स्वेट, ये सारे ही आपके क्या हैं, ये आपका जो है वेस्ट है. डिड यू नो अबाउट 1 liter of water and 1/3 teaspoon of salt are eliminated through the skin every day. So how interesting this is. हर दिन 1 लीटर वाटर और 1/3 teaspoon of salt हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं. All animals have special organs for excretion. Kidneys, lungs and sweat glands are the excretory organs of animals. Do you think that plants also excrete waste products? Plants excrete water vapors and carbon dioxide from small pores called stomata. They get rid of their waste by secreting substances which are not required. This process is known as secretion. The gum is a waste product secreted by the plant. Latex obtained from rubber plants is a waste product. अब देखिए एनिमल्स में ना स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जैसे किडनीज, लंग्स या आपके स्वेट ग्लैंड्स है, ये सारे ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स से. आपको क्या लगता है कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं. एक तो वाटर वेपर एक्सक्रीट करते हैं, दूसरा स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं. राइट. अब क्या होता है कि जो वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, उससे कैसे वो गेट रिड करते हैं, बाय सिक्रीटिंग सब्सटेंसेस जिनको ज़रूरत ही नहीं होती है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन. जैसे गम जो प्लांट से आपको मिलता है, दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट सिक्रीट करते हैं. लेटेक्स जो आपका रबर प्लांट से मिलता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का. All living things show response to stimuli. All living things respond to their surroundings. External factors like light and temperature make living beings react to them. The change that produces a response in an organism is known as a stimulus. The immediate action to adjust oneself according to the change is a response. What happens when someone suddenly pinches you? You either jump or scream or cry. This is your response to stimulus. अब देखिए जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग में रिस्पॉन्ड करते हैं. अब जैसे कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइट है या टेम्परेचर है, ये लिविंग थिंग्स को रिएक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं. तो ये जो चेंजेस जो प्रोड्यूस होते हैं जब रिस्पॉन्स कोई ऑर्गेनिज्म करता है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस. ये एक इमीडिएट एक्शन होता है. राइट. जैसे कि कोई आपको सडनली से पिंच करे तो आप क्या करते हैं, तो एकदम से आप उछल जाएंगे या चिल्लाएंगे या फिर क्राई. तो ये आपका क्या है, ये आपका रिस्पॉन्स है टू स्टिमुलस. Like all living beings, plants also respond to various stimulus. They wilt when the temperature is high. They grow towards light. The drooping of leaves of touch me not plant is a response to the touch stimulation. रात की रानी flowers open at night and close during the day. तो देखिए प्लांट्स भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं टू वेरियस स्टिमुलस. जैसे कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो विल्ट हो जाते, मुरझा जाते हैं. ये लाइट की तरफ ग्रो करते हैं. हमने टच मी नॉट की बात की थी, उसको जब टच किया जाता है उसकी जो लीव्स होती है वो ड्रूप हो जाती हैं. इसी तरह से जो रात की रानी जो फ्लावर है वो सिर्फ रात को ही ओपन होता है एंड डे के टाइम वो क्लोज हो जाते हैं. एक्टिविटी 7.2.
Take a small potted plant and place it near a window from which light can enter. After a few days, you will notice that it has bent towards the light. What made the plant to do this? This response of a plant to light is known as phototropism. आपको देखिए एक स्मॉल पॉटेड प्लांट रखना है और उसको विंडो के पास रखना है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है. कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि ये लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? इसने रिस्पॉन्स किया लाइट की तरफ, एंड दिस रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज phototropism. So remember that. All living things are made up of cells. Cells are the structural and functional unit of any living organism. Just as a wall is made of bricks, living organisms are made of cells. Some plants and animals consist of single cell and are called unicellular organisms. Examples: amoeba, paramecium, bacteria and yeast. अब देखिए cells जो है आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. जैसे कि आपकी एक वॉल दीवार जो है ना ब्रिक से बनी होती है, इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं. तो कुछ आपके प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड यीस्ट. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव as many as billions of cells. They are known as multicellular organisms. Examples: man, cat, dog, pine, rose plant, etc. और जो ऑर्गेनिज्म यानी जो एनिमल्स या प्लांट्स बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी कि मोर देन आपके वन सेल से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक्टिविटी 7.3. टू स्टडी plant cells, take out a fleshy leaf from an onion bulb. With the help of knife, peel off the thin upper membrane of this leaf. Add a drop of water in the center of a glass slide. Place a small piece of the membrane of the slide and cover it with a cover slip. Observe it under a microscope. Now you understand that a number of regular cells close together. अब आपको देखो क्या करना है, एक फ्लैशी स्टेम लेना है अनियन बल्ब का और नाइफ की हेल्प से उसका जो अपर मेम्ब्रेन होता है लीफ का उसको निकालना है. उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालना है वाटर के ग्लास और उसको रखना है ग्लास स्लाइड के सेंटर में. फिर आपने उसमें रखना है वो जो स्मॉल पीस ऑफ मेम्ब्रेन था स्लाइड का एंड देन कवर करना उसको कवर स्लिप से. अब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो रेगुलर सेल्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं. डीके. All living things live for a certain period and each has a limited lifespan. After growing up to its full, it begins to grow old, that is to decay gradually. Some animals such as the tortoise live for a very long time, while the lifespan of some insects may be only for a few days or few hours. अब देखिए जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सर्टेन पीरियड तक उनका एक लाइफ स्पेन होता है, राइट. कुछ उसके बाद जब वो फुली ग्रो करते हैं देन दे स्टार्ट टू ग्रो ओल्ड, और इसका यानी कि वो डीके होना शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली. कुछ एनिमल्स जैसे कि टॉर्टाइस की बात करें हम तो वो काफ़ी लंबे समय तक जीता है, जबकि कुछ इंसेक्ट्स होता है उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत थोड़े दिन का होता है और कुछ का तो ऐसा होता है कि कुछ ही घंटों का होता है. Differences between living and non-living things. The differences between living and non-living things are as follows. Living things eat food but non-living things do not need food. Living things need a habitat but non-living things do not need a particular habitat. Living things को एक habitat की ज़रूरत होती है but non-living के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें किसी भी particular habitat की ज़रूरत नहीं है. Non-living things are made up of cells while non-living things are made up of atoms. Remember this. Living things reproduce while non-living things cannot reproduce, right? Living things grow and develop while non-living things do not grow and develop. Living things have a definite lifespan while the lifespan of non-living things depend on maintenance and other factors. Living things की definite lifespan होती है जबकि non-living thing का depend करता है कि उनकी किस तरह से maintenance होती है बाकी दूसरे जो factors हैं. So these are the differences जो आपने previous classes में भी पढ़े होंगे. Points to remember. There are a variety of objects in our surroundings. Objects have different shapes and sizes but all are made up of matter. Objects may be of two types, living and non-living. Living things respire, grow, reproduce, move, excrete, respond to stimuli and are made up of cells. All living things have definite lifespan. Green plants make their own food. They are called autotrophs. Remember that green plants are known as autotrophs. Only green plants. The change that produces a response in an organism is known as stimulus. The removal of the waste product from the body of living organism is called excretion. Plants also excrete wastes such as gum, resin and latex.
चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.